Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss all the questions of Limitation Act which came in the exam paper of MP Judicial Services from the year 2011 to 2022. I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही beneficial रहेगा. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon. SC 47, which section of Limitation Act is based on the principle of lex cogit, lex non cogit ad impossibilia. देखिए यहाँ पर एड लिखा हुआ ना, वो ऊपर जो था क्वेश्चन उसमें सीपीसी में वहाँ पर एड लिखा हुआ था. तो कौन सेक्शन है? सेक्शन 4. 1 is the answer. Because what is section 4? When the court is closed on the last day of limitation, then you can file on the next day. So law does not require to do an impossible act. Next is 48. Under section 21 Limitation Act, when the suit shall be deemed to have been instituted against a newly independent impleaded dependent from date of filing suit or from the date of filing of application impleading him as defendant, the date on which he was impleaded. So 3 is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 21 में ही मेंशन किया गया है. इसमें लिखा हुआ when he was so made a party. Next is 49. In which case Supreme Court has held that when a plaintiff serves notice under 80 CPC on the defendant on the last day of limitation and files a suit before the expiry of 2 months, which is entertained by the court under the provision of 80 subsection 2, the plaintiff would be entitled to get the period excluded under this section. तो कौन सा केस था वो? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड. 4 is the answer. Next is 50. As per bare provision of section 4, देखिए अभी बताया था वही पूछा हुआ है. द कोर्ट शुड बी क्लोज द होल डे. रिपीट क्वेश्चन है ये तो. इफ नॉट क्लोज फॉर द होल वर्किंग बट क्लोज फॉर हाफ डे, क्लोज ऑन अ डे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इफ ड्यूरिंग पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग आवर इट रिमेन्स क्लोज ऑन दैट डे. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 3 इज द आंसर. Next 47. Negotiations for settlement taking place between a claimant or person against whom claim is made bars the defendant from pledging a statute of limitation where a negotiation have led to delay in bringing action by the claimant, या फिर does not debar the defendant from pleading a statute of limitation. does not debar, है ना? तो 2 is the answer. अब आप इस क्वेश्चन को समझिए. Now suppose कि before that filing of suit in the court, जहाँ पर इसका ये एंड हो रहा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, उससे पहले उन्होंने क्या किया यहाँ पर कि नेगोशिएशन फॉर सेटलमेंट कर ली. मान लो आर्बिट्रेशन में भेज दिया, कंसिलेशन चल रहा है, नेगोशिएशन चल रही है, ठीक है ना? तो उससे क्या वो डिबार हो जाएगा? अगर मान लो कि अगर ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन ओवर हो गया तो वो डज नॉट डिबार. सो 2 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 48. Under section 21, a suit is deemed to have been instituted in a case of a new plaintiff impleaded on the date on which the plaintiff is impleaded. बिल्कुल ठीक है. Suit initially instituted no. Date on which application for impleadment is made no. तो 1 is the answer. Next 49. The jurisdiction to grant exemption under section 14 of Limitation Act is given exclusively to Court of First Instance, High Court, Supreme Court, Civil Court. Court of first instance obviously. तो 1 इसका आंसर रहेगा. Next 50. In a suit filed by the plaintiff, the defendant in his written statement has taken the objection of non-impleadment of necessary party. Despite such objection, the plaintiff continues the suit and the suit was finally decreed. At the first appellate stage, the plaintiff withdrew the suit with liberty to file a fresh one on the same cause of action and subsequently filed a fresh suit. The period spent by the plaintiff in earlier suit under section 14 is liable to be excluded. No, it will not be excluded. कहीं पर भी इसमें गुड फेथ वर्ड जो है वो यूज़ नहीं किया गया, ना ड्यू डिलिजेंस कहीं वर्ड यूज़ किया गया. इसका मतलब वो ना तो गुड फेथ में था ना इसमें ड्यू डिलिजेंस थी, है ना? तो 2 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 47. Any other application for which limitation period has not been provided in Limitation Act, then the limitation period will be
3 years, 1 is the answer. का मेंशन किया गया इन आर्टिकल 137 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट. ओके. नेक्स्ट इज 48. सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू. किस पर अप्लाई नहीं होता? सूट्स पर अप्लाई नहीं होता, अपील एप्लीकेशन पर हो जाता है. तो 1 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 49. In completing the period of limitation for any appeal or application, the day shall be excluded on which limitation is period is to be computed. ये बिल्कुल ठीक है. Judgment has been pronounced in appeal. Yes. A time requisite for obtaining copy of judgment. Yes. All of these हो गया तो 4 इसका आंसर हो गया. इसके लिए देखिए आप सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट. नेक्स्ट 50. For the purpose of this act, in a suit for pauper, the suit shall be deemed to be instituted on the date when application to leave to sue as pauper is made, not allowed, है ना. So 1 is the answer. देखिए सेम क्वेश्चन आया है अभी DJS 2023 के एग्जाम पेपर में. तो देखिए मिल जाएगा. 2 स्टेटमेंट लिखी है, उसमें से एक स्टेटमेंट ये वाली भी है. एक काउंटर क्लेम की स्टेटमेंट थी और एक स्टेटमेंट इसकी थी. तो देख लिए रिपीट क्वेश्चन तो होते रहते हैं इधर उधर से, है ना. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? दिस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट. क्वेश्चन नंबर 47. Where the prescribed period of limitation for any application is expiring on a holiday, the application should be made prior to the holiday या फिर made on the day when the court reopens. 2 is the answer. कहाँ लिखा हुआ ये? सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट. Next 48. Any suit for which no period of limitation is provided elsewhere in limitation act, the period for filing a suit is 3 years from the date when the right to sue accrues. 3 year. 3 is the answer. का मेंशन किया गया इन आर्टिकल 113 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. नेक्स्ट इज 49. लीगल डिसेबिलिटीज आर माइनॉरिटी है, इंसैनिटी है, इडियोसी है. ऑल ऑफ दीज. 4 इज द आंसर. का मेंशन किया गया है सेक्शन 6 में. नेक्स्ट 50. व्हाट आर द लिमिटेशन फॉर फोरक्लोजर? कितनी है? 30 ईयर है. 4 इज द आंसर. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 63 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट टू कंपनसेशन फॉर malicious प्रोसिक्यूशन इज कितना है? दैट इज 1 ईयर. 3 इज द आंसर. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन आर्टिकल 74 ऑफ द शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. नेक्स्ट 48. सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू. सूट्स पर अप्लाई होता है? नहीं होता. एग्जीक्यूशन पिटीशन पर नहीं होता. पिटीशन फॉर डाइवोर्स अंडर नहीं होगा. ऑल ऑफ दीज. 4 इज द आंसर. सेक्शन 5 किस पर अप्लीकेबल होता है? अपील्स एंड एप्लीकेशंस पर. तो एग्जीक्यूशन पिटीशन, सूट्स और इन पिटीशन पर ये अप्लीकेबल नहीं होता है. 4 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 49. The period of limitation for preferring an appeal from a decree passed by a court subordinate to the High Court from the date of decree is कितना है? That is 90 days. 1 is the answer. का मेंशन किया गया है इन आर्टिकल 116 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. ऐसी 50. सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू. अब देखिए अभी बताया था अपील्स एंड एप्लीकेशन पर अप्लाई होता है, सूट एग्जीक्यूशन पर नहीं होता. देखिए एक ही पेपर में एक ही सेक्शन में 2 क्वेश्चन आ गए. 2 इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 47. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन 10 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज. कहाँ अप्लाई होता है? ट्रस्ट अराइजिंग बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ या फिर फॉर स्पेसिफिक पर्पस है इम्प्लाइड ट्रस्ट. ट्रस्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस पर होता है. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 48. लिमिटेशन टू ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी.
कितना है 2 year when the right to sue first accrues या फिर 3 year when the right to sue first accrues, फिर 1 year 3 year when the right to sue first accrues. 2 is the answer. का मेंशन किया गया है इन आर्टिकल 58 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. Next is 49. Period of limitation for the enforcement of a decree granting a mandatory injunction is 12 year, 1 year, 3 year. It is 3 year. So 3 is the answer. का मेंशन किया गया है इन आर्टिकल 135 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. Next is 50. Where once time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it. It provides in which section? In section 9. 2 is the answer. Next is 47. सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू. अब देखिए 17 में पूछा गया फिर 18 में पूछ लिया है ना. अभी मैंने बताया था कि अपील एंड एप्लीकेशन पर होता है. 3 इज द आंसर. Next is 48. In which section it is provided that in completing the period of limitation for appeal, review or revision, the time requisite for obtaining copy of the decree or order appealed shall be excluded. सेक्शन 12 है ये. सब सेक्शन कौन सा है? दैट इज 12(2). 2 इज द आंसर. 12(1) में क्या है? जहां से रेकॉन होगा पीरियड उसको एक्सक्लूड कर देंगे. नेक्स्ट is 49. Which among the following is not a legal disability under section 6 of limitation act? Imprisonment नहीं है, idiocy, minority, insanity है. So 1 is the answer. Next is 50. Limitation to file suit for possession of immovable property कितना है? 1 year, 3 year, 12 year. 12 years है. 3 is the answer. देखिए पोजेशन चाहे कैसा भी हो, पोजेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन या फिर नोट ऑन टाइटल या फिर ऑन टाइटल, सबका क्या है उसमें 12 ईयर ही है. जहाँ भी पोजेशन आएगा तो 12 ईयर ही लगा देना. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन आर्टिकल 65 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. Under Limitation Act, which of the following shall not be counted for computation of period of limitation? क्या काउंट नहीं करेंगे? The day on which period is to be counted. देखिए 12(1) में लिखा हुआ है ये. Time taken by the advocate to prepare memorandum, no ये नहीं होगा. Time taken to obtain copy of judgment, ये एक्सक्लूड हो जाएगा. फिर टाइम टेकन फॉर obtaining लीव टू sue एज एन इंजर्ड पर्सन, ये भी यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाएगा, तो वो काउंट नहीं होगा. और देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा इन्होंने गड़बड़ कर दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी काउंटेड फॉर कंपटीशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन. तो ये तो काउंट नहीं करेंगे, तो ये वाली तो उसमें इंक्लूड रहेगी, काउंट करेंगे, है ना. या तो ऐसे पूछते कि विच शैल बी काउंटेड, तब तो ये 2 इसमें आंसर होता है. या फिर ऐसे पूछते कि शैल नॉट बी काउंटेड इन एक्सक्लूजन ऑफ द पीरियड, तो ये इसका आंसर 2 होता. थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया ये. नेक्स्ट 31. ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज साइंड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड, वी साइंड आफ्टर, या फिर ओरल एग्रीमेंट. नो, साइंड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड. 1 इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन इज 18. Next is 32. Whether a court can grant extension of period of limitation under section 5 on the ground of sufficient cause in case of application under order 21 of CPC. एग्जीक्यूशन पे होगा क्या? नहीं, अपील्स एंड एप्लीकेशन पर ये अप्लाई होता है, तो नो इसका आंसर रहेगा. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 30. Under Limitation Act, the period of limitation for a suit by a landlord to recover possession from the tenant after determination of tenancy कितना है? देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जहाँ भी पोजेशन की बात आएगी तो वहाँ पर 12 ईयर लगा दीजिएगा, वो आंसर ठीक रहेगा. 4 इज द आंसर. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन आर्टिकल 65 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. नेक्स्ट 31. एनी सूट फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन द स्केड्यूल, द लिमिटेशन वुड बी कितना रहेगा वो? 1 year, 3 year, 3 months. It is 3 years. 2 is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन आर्टिकल 113 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट. नेक्स्ट 32. पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सेटिंग असाइड एन एक्स पार्टी डिक्री कितना होता है? दैट इज 30 days. 2 इज द आंसर.
कहाँ मेंशन किया गया है? इन आर्टिकल 123 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। This is question number 28. In order to attract the applicability of section 14 of limitation act, which condition is not required to be satisfied? और एक सेक्शन 14 क्या है? जब सेक्शन 14 is for exclusion of time or proceeding bona fide in another court in jurisdiction of like nature, है ना? तो क्या होगा? Both the prior and subsequent proceeding are civil proceedings prosecuted by the same party in a court. बिल्कुल ठीक है। The prior proceeding had been prosecuted with due diligence and good faith, बिल्कुल ठीक है। The earlier proceeding and later proceeding may be based on different matter in issue, सेम होना चाहिए। लिखा ना नॉट रिक्वायर्ड, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया। द फेलियर ऑफ द प्रायर प्रोसीडिंग्स वाज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ जुडिक्शन और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर, बिल्कुल ठीक है। तो नॉट रिक्वायर्ड इज 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 29. Suit filed by plaintiff based on agreement to sell, which was executed on 3/9/2001, with the stipulation that the sale deal will be executed within 6 months. तो 6 months में फाइल होनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या हुआ? 3/9/2001 से 6 मंथ का कंप्लीट हो गए 3rd of March 2002, है ना? Stay order passed in another appeal by which owner was restrained from alienating this property with effect from 3/3/2003 to 28/9/2006। देखिए लिमिटेशन पीरियड तो ओवर हो गया 2002 में। उसके बाद से फिर जो इंजंक्शन लगी है वो कब से कब तक लगी है? 3 से और 6 के बीच में। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द पीरियड ऑफ 3 year would start from 3/3/2002, that is after the lapse of 6 months, because there was no stay against the plaintiff for filing a suit claiming specific relief आना चाहिए, specific relief, है ना? फिर पीरियड ऑफ स्टे विद इफेक्ट फ्रॉम 3/3/2003 to 2006 could be excluded with the help of section 15 of limitation act। नहीं, रॉन्ग है। The period of 3 year will start from 28/9/2006. No, will start from 3/11. Suit cannot be filed after 3/9/2004. No, 1 इसका आंसर रहेगा। Next is 30. Land was granted by state government by way of allotment with the limitation on enjoyment for 15 years. Transfer did not involve absolute ownership of land. The period of limitation of claim adverse possession in such case would be कितना रहेगा? In case of government it is 30 years. Easement right जो है वो 30 years का रहता है। In other case against private person it is 20 years. So 1 is the answer. सेक्शन कौन सा है ये? This is section 25 of the Limitation Act. Next 31. Appeal against a decree can be filed in High Court within 90 days. 1 is the answer. A repeat question है ये। कहाँ मेंशन किया गया है? In Article 116 of the Schedule of Limitation Act. Next is 28. Under Limitation Act, in computing the period of limitation for any suit, the day from which such period is to be reckoned, वो क्या होगा? Shall be excluded या फिर included? It shall be excluded. 1 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? In section 12 subsection 1 of Limitation Act. Next is 29. As per section 5 of Limitation Act, prescribed period of limitation may not be extended in case of, देखिए सेक्शन 5 किसके लिए? अपील्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए। फिर एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 किसके लिए? एग्जीक्यूशन। तो सूट और एग्जीक्यूशन पिटीशन पर ये अप्लाई नहीं होता है, तो नॉट be extended in case of execution petition. 3 is the answer. Next is 30. Under Limitation Act, the prescribed period of limitation for suit for compensation of a malicious prosecution is कितना है? That is 1 year, 2 year, 3 year, 5 year. 1 year. 1 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? इन आर्टिकल 74 ऑफ Schedule of Limitation Act में। Next 31. Law of limitation ordinarily bars a remedy but does not extinguish a right. Which of the following section of Limitation Act provides for exception to the said rule? That is section 27. 4 is the answer. 27 say in terms of
पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, तो वहां पर राइट भी जो है एक्सटिंग्विश हो जाएगा। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 28, सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डज अप्लाई इन केस ऑफ, किस केस में अप्लाई होता है? देखिए, माइनॉरिटी, इंसेन एंड ईडीओसी के केस में अप्लाई होता है ये। इलनेस पॉवर्टी में अप्लाई नहीं होता, तो फिर 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 29, एनी सूट फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन द स्केड्यूल ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, द लिमिटेशन वुड बी, कितना लिमिटेशन रहेगा? 3 इयर्स ऑब्वियसली। कहाँ मेंशन किया गया है? इन आर्टिकल 113 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। नेक्स्ट इज 30, अंडर लिमिटेशन एक्ट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन shall be deemed to be extended for a maximum period the death of the person affected by disability। तो कितना हो सकता है वो? या तो जितना लिमिटेशन पीरियड बचा हुआ है वो, या फिर 3 ईयर, विच एवर इज हायर, तो वो मिल जाते हैं। तो 3 इसका आंसर रहेगा। कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 8 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में। नेक्स्ट 31, अंडर सेक्शन 21 ऑफ लिमिटेशन एक्ट व्हेन द सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड एज अगेंस्ट द न्यूली इम्प्लीडेड डिफेंडेंट, कब से होगा वो? फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट, या फिर फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन टू इम्प्लीड हिम एज डिफेंडेंट, या फिर द डेट ऑन विच ही वाज इम्प्लीडेड। ही वाज इम्प्लीडेड, 3 इज द आंसर। ऐसे 73, where the prescribed period for any suit, appeal, or application expires on a day when the court is closed. The suit, appeal, or application may be instituted, preferred, or made on the day when court reopens या फिर at the residence of judge on the day of occasion. A is the answer। का मेंशन किया गया है in section 4 of limitation act। ऐसे 74, acknowledgement made after the period of limitation is of no effect या फिर gives right an independent enforceable contract या फिर liable defendant to pay the same। ये आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन जब वो एक्सपायर हो गया उसके बाद कोई एक्नोलेजमेंट कर रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट इट विल बी अ सेपरेट इंडिपेंडेंट इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 25 एक्सेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है ना, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 75, द पीरियड फॉर लिमिटेशन फॉर फाइलिंग डिफेमेशन सूट इज, कितना है डिफेमेशन के लिए? दैट इज 1 ईयर। ए इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है ये? देखिए, डेफेमेशन के लिए पर्टिकुलरली नहीं लिखा हुआ है, तो जो डेफेमेशन के जो मोड्स होते हैं बाय लीबल एंड सिलेंडर उनके लिए लिखा हुआ है 1 ईयर इन आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। नेक्स्ट 76, काउंटर क्लेम अंडर सेक्शन 3 of limitation act shall be deemed to have been instituted on the same day when the suit in which counterclaim is made has been filed या फिर day on which the counterclaim is filed, या फिर either A or B whichever is beneficial to the defendant या फिर plaintiff। no, B is the answer। सेक्शन 3 में ही मेंशन किया गया है in subsection 2 clause B sub clause 2। Next is 73, which of the following shall be counted for computation of period of limitation act। देखिए लिखा हुआ shall be counted। अब देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है ना। द डे फ्रॉम विच द पीरियड इज टू बी काउंटेड, तो वो उसको क्या कर देंगे? उसको तो एक्सक्लूड कर देंगे। टाइम टेकन बाय द एडवोकेट टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ अपील, ये जो है एक्सक्लूड नहीं होगा, ये काउंट होगा। फिर टाइम टेकन टू ऑब्टेन कॉपी ऑफ जजमेंट ऑर्डर अवार्ड, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर टाइम टेकन फॉर ऑब्टेनिंग लीव टू सू एज इंडिजेंट पर्सन, ये भी जो है एक्सक्लूड हो जाएगा। तो कौन सा काउंट करेंगे? बी वाला। बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा लगेगा यहाँ पे? सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। Next 74, the provision of section 5 of the act extension of prescribed period are not applicable to, किस पर applicable नहीं होता? अपील्स हो जाएगा, applications पर हो जाएगा, रिवीजन पर भी हो जाता है, because revision is also an application। सूट्स पर अप्लाई नहीं होता है। C is the answer। Next 75, any suit for which no period of limitation provided elsewhere in the schedule of the act, limitation would be, कितना होगा? 3 years
फिर से रिपीट क्वेश्चन है ये, बी इज द आंसर का मेंशन किया गया है इन आर्टिकल 113 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। नेक्स्ट 76, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट फ्रॉम द ड्यू डेट शैल बी। देखिए जहाँ भी अरियर्स की बात आ गई ना, तो मनी की बात आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, मनी मैटर है तो हमेशा 3 ईयर ही मिलेगा आपको। सी इसका आंसर रहेगा 3 ईयर्स। और ये कहाँ मेंशन किया गया है, इन आर्टिकल 52 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। So friends, here we have discussed all the questions of Limitation Act which came in the exam paper of MP Judicial Services from the year 2011 to 2022. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम, तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।